Hi everyone, my name is Ashwarya Singh and welcome back to Shikation. I'm extremely excited about our Prelims 2024 Marathon series starting with the subject of polity. इस series में सारे prelim specific topics को cover किया जाएगा and within half an hour you will be able to complete multiple topics. I have divided all the topics so that एक भी polity का question आप गलत नहीं करके आएंगे in this prelims. Before proceeding with this session, I will take you through all the topics that we are going to cover in the marathon series. And one more thing, इसका पूरा PDF, entire session का PDF आपको हमारे Telegram channel पे मिल जाएगा जिसका link description box में. So in the series, we are going to cover all these topics, historical underpinnings and constituent assembly in this video. In the upcoming videos, you will learn about union government and state government. Then we'll complete the topic of preamble, union and its territories, citizenship, fundamental rights, features of Indian constitution, fundamental duties, DPSP, that is directive principles of state policy, parliament, state legislature, judiciary, constitutional bodies, non-constitutional bodies, and very importantly we'll be doing miscellaneous topics जिसमें से काफ़ी बार सवाल आते हैं amendment specific या कोई particular policy related question, right? Also in the session after completing let's say historical underpinnings मैं आपको कुछ सवाल भी बताऊंगी जो previous year papers में इन topics से पूछे गए and you will have to after learning these topics sit and figure out कि और क्या पूछा जा सकता है जिससे revision और भी ज़्यादा effective हो जाता है. In my previous video where I was discussing about the 5-month strategy, I gave a concept of or rather a technique of active recalling जिसमें you learn a particular subject or a topic and then you sit, understand it and उसके बाद you make questions out of it कि आखिर UPSC क्या पूछना चाहेगा. So if you have not watched that video, please go and check that out. Now talking about British Parliament, see from 1858 to 1947 British Parliament ने लगभग 196 acts को पास किया था जिनमें से सबसे important acts आज हम discuss करेंगे जो prelim specific है, starting with Government of India Act of 1858. Revolt of Mangal Pandey in 1857 and many other smaller bigger revolts, it shook the British confidence. They were not able to understand कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं knowingly unknowingly. So with this act you will see some fundamental significant changes. Administration में you will see कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसकी बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली जाती है और ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है. जो गवर्नर जनरल का टाइटल है अब वो वाइसरॉय हो जाता है एंड वाइसरॉय इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन जो मिलिट्री और नेवी फोर्सेज है वो भी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए जाते हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको अबॉलिश कर दिया जाता है और इंडियन काउंसिल की स्थापना की जाती है विद 15 मेंबर्स जिसमें से 7 मेंबर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अर्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से उनको लिया गया एंड रेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स वो अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन. सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है फॉर इंडिया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंडियन काउंसिल एंड उनके पास वोटिंग राइट थी. ठीक है, ये काउंसिल विल मीट ट्वाइस अ वीक, ये इनका फ्रीक्वेंसी होता था मीटिंग्स का एंड जितना भी सिविल और मिलिट्री सर्वेंट्स का कंट्रोल था वो अब ब्रिटिश क्राउन ने इंडियन काउंसिल को दे दिया था. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया के उनको एक कॉरपोरेट एंटिटी डिक्लेयर किया गया था सो बैंड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी प्रेजेंट्स और टेकिंग ब्राइब्स. Also, Secretary of State was given the power to superintend, control and direct all the Indian affairs. He was also a cabinet minister of England. इसीलिए if he in case is found guilty, he'll be punished both in England and India. Now let's look at Indian Councils Act of 1861 and the reason for this policy was that Britishers wanted to understand क्या कि Indians के दिमाग में क्या चल रहा है, especially what are they thinking about the British rule. इस act से Viceroy Council का जो power है या purpose है वो एनलार्ज किया जाता है और उनके काउंसिल को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बुलाया जाता है और मेंबर्स ऑफ द काउंसिल जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जिसमें 6 से 12 मेंबर्स होंगे एंड उनमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ देम विल बी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडियन हो सकते हैं या ब्रिटिश हो सकते हैं. अब इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्चुअली देखा जाए तो इट वॉजंट अ वेरी इफेक्टिव बॉडी बिकॉज इट डिड नॉट हैव रियल पावर्स. इट वॉज merely an advisory body to give advice to the viceroy. They did not discuss any important measures or policies. It had no control over the budget. They could not discuss any motions. They had no control on the executive. No bills could be passed until and unless it was approved by the viceroy. So it is exactly this particular statement is very similar to that of the president. जब तक एक बिल को आप
प्रेसिडेंट से साइन नहीं करवा लेते, वो एक्ट नहीं बन सकता है. Further, we see that there is creation of provincial executive councils and Bombay and Madras के जो government से उनको authority दे दी जाती है to nominate their attorney general and additional powers दिए जाते हैं viceroy को to create new provinces और उसमें वो एक governor, lieutenant governor को appoint कर सकते हैं. Just like the president appoints a governor in each state today, it was exactly the same at the time. And he was also authorized to divide or alter the limits of the presidency, the province or the territory. So basically it was a beginning of decentralization that was missing before 1861. Now talking about the next important act, that is the Indian Council Act of 1892. See, by this time जो हमारे early nationalists हैं, they were extremely frustrated with the fact कि नाम Indian Council है लेकिन उसमें Indians का जो number है, membership है, वो बहुत कम है. So after this act, the number of Indian members was increased, लेकिन majority रहेगी Britishers की, right, in the Imperial Legislative Council. अब जो Imperial Legislative Council है उसको budget discuss करने का right दे दिया गया था, but they could not vote on the budget. जो एक डिमांड्स फॉर ग्रांट होता है ना, उस पर वोटिंग का परमिशन अभी तक नहीं दिया गया था. नेशनलिस्ट ने इस तरह से रिबेल करना शुरू किया तो ब्रिटिश को ईंट का जवाब पत्थर से देना ही था. सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो फेमसली मोरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहलाया जाता है, उसका पर्पस वॉज नॉट वेलफेयर और नॉट ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव चेंज, बट द पर्पस वॉज टू डिवाइड द मॉडरेट नेशनलिस्ट टू क्रश देयर डिमांड्स. सो फॉर दैट दे इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, in the Imperial Council. Then they started reserving seats for landlords and British capitalists in India. And moreover, ये जो reformed councils थे ना, they were enjoying no real power. They just behaved like an advisory body. Then they introduced separate communal electorates under this act, which was extremely unacceptable by many leaders. Official majority जो थी उसमें completely, that thing was abolished, especially from the provincial legislature. और ये किया गया था on the advice of गोपाल कृष्ण गोखले जी. तो कुछ चीज़ें, एक आधा चीज़ें मानी भी थी हमारी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने की थी with the agenda of breaking our morale. The reformed legislature did not have any control on the executive. कुछ पावर्स दिए गए थे टू द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जैसे राइट टू आस्क क्वेश्चंस, टू मूव रिजोल्यूशंस, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लेना और उस पर डिस्कशन करना, बट इट स्टिल रिमेन्ड वेरी इनइफेक्टिव. नाउ मूविंग ऑन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको बुलाते हैं. सी द रिफॉर्म्स वर मेड फॉर इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, विच प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल लेवल पे काफ़ी चेंजेस किए गए. जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ है उसको बड़ा किया गया, एनलार्ज किया गया, और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड. डायाकी का सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, जहाँ पे 2 कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया. पहला जो कैटेगरी है वो है रिजर्व सब्जेक्ट का, जिसमें फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर जैसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स हैं, विच वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर, दैट वॉज अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय. वेयरएज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या क्या था, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कंट्रोल किया जाएगा बाय द मिनिस्टर, जो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, जिसका इलेक्शन किया जाएगा. लाइक डायरेक्टली इलेक्टेड मिनिस्टर्स विल लुक आफ्टर दीज सब्जेक्ट्स. Further, under this act, we see that there is an extension of the communal electorate system. So earlier Muslims को provide किया जा रहा था, अब Sikh, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जा रहा है. बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंट्रल लेवल पे. लोअर हाउस वाज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस वाज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट डे लोकसभा एंड राज्यसभा. अगर प्रोविंसेस में हम बाई कैमरलिज्म देखें आज के टाइम में, यानी स्टेट्स में, तो कुछ स्टेट्स में एलसीज भी हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, लेकिन सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं और कुछ यूटीज में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. तो दैट इज़ बाई कैमरलिज्म ऑफ द लेजिस्लेचर. फर्दर सिविल सर्विसेज अब इंडिया में भी कंडक्ट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. इनिशियली वो लंदन में या इंग्लैंड में कंडक्ट किया जाता था, और फेडरल जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है सो दैट सर्विसेज का इंडियनाइजेशन हो सके. नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस अबाउट द चेंबर ऑफ प्रिंसेस. मियरली एन एडवाइजरी बॉडी जिसका कोई लेना देना नहीं था विद द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल स्टेट.
नॉर इट कुड डिस्कस एनी अदर मैटर, और इनको भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया था. मूविंग ऑन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. इसको ध्यान से समझिए. सी, देयर वाज अ प्लान कि ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, दैट इज़ मिक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स. इसको मिला के हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे. बट ये कभी मटीरियलाइज हो नहीं पाया सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 47. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. मतलब डायकी विल बी रिमूव फ्रॉम प्रोविंसेस एंड नाउ इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल. नाउ वाइसरॉय वुड कंट्रोल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. जो फाइनेंशियल कंट्रोल था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से लेकर वाइसरॉय को दे दिया जाता है. ठीक है. द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. On some important changes या establishments that happened because of this act were the establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission. So आज का UPSC, SPSC और JPSC. JPSC क्या होता है भाई? एक से ज़्यादा स्टेट्स को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो JPSC के तहत दोनों स्टेट्स अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर दिस एक्ट, जो करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करेगा. फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है फॉर इंटर प्रोविंस कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए. जो काउंसिल 1858 में इस्टेब्लिश किया गया था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है. जो इलेक्टोरेट का साइज़ है वो बढ़ जाता है फ्रॉम 6.5 मिलियन पीपल टू 30 मिलियन पीपल, जिसमें से 30 से 40% सीट्स भरे जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में ओनली बाय द नॉमिनीज ऑफ द रूलर. दिस वॉज डन बेसिकली बिकॉज उनको पता था अगर पब्लिक के हाथ में कम्प्लीटली छोड़ दिया जाएगा तो कांग्रेस जो पार्टी सबसे प्रोमिनेंट पार्टी है उस टाइम की, उसको मेजॉरिटी वोट्स मिल जाएंगे. तो उन्होंने ये चीज़ डेफिनेटली की 1935 में, और फाइनली बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया. एंड द फाइनल एक्ट दैट यू शुड नो इज दैट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इट वॉज बेस्ड ऑन द माउंटबैटन प्लान, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ को क्रिएट किया जाता है, और एक रैटक्लिफ कमेटी भी इस्टेब्लिश की जाती है जिसमें एक बाउंड्री कमीशन को फॉर्म किया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइरल रैटक्लिफ. जो क्राउन है वो कम्प्लीटली अपनी अथॉरिटी पावर खो देता है. वाइसरॉयज, प्रोविंशियल गवर्नर्स वो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स को कम्प्लीटली लूज़ कर देते हैं, एंड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया जाता है. A very very important point before we go to the PYQs is that Act of 1935 was continued to be followed till the new constitution was made. Center और provinces दोनों जगह इस act को follow किया जा रहा था with necessary changes. The PYQs, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सवाल है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है, एंड यू शुड नोट डाउन द आंसर इन योर नोट्स और कमेंट डाउन बिलो. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ये 2021 का क्वेश्चन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें से पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. Another important question that came again from Montague Chelmsford proposal was that in 2016 they were asking about it is related to what, and the Government of India Act of 1919 को फिर से पूछा जा रहा है 2015 में. तो there is a very high possibility questions will come from these topics. Let's talk about the making of Indian Constitution for which the Constituent Assembly was composed. ठीक है, जिसमें 389 मेंबर्स थे इनिशियली, लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये नंबर 299 पर आ जाता है. एंड 299 में से 229 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, एंड 70 नॉमिनेटेड मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी चेयरमैन का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी. लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं प्रेसिडेंट, एंड HC मुखर्जी जी बनते हैं, यानी हरिंद्र कुमार मुखर्जी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइज़र थे उनका नाम था BN राव. अब टाइमलाइन को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे मीटिंग्स हुई, कैसे हमारा संविधान बनना शुरू होता है. तो पहली मीटिंग इस असेंबली की होती है 9 दिसंबर 1946 को. मुस्लिम लीग इनिशियली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जब पार्टीशन क्लियर हो जाता है माउंटबैटन प्लान के बाद, तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स इंडिया के साथ रहना चुनते हैं वो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लेते हैं. ऑल्सो द प्रिंसली स्टेट्स इनिशियली स्टेड अवे फ्रॉम द मीटिंग्स, बट नाउ दे वर ऑल्सो participating in the meetings of the assembly.
took around 11 sessions to finalize our constitution एंड 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद हमारा संविधान बनता है. एंड द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 24th January 1950. Let's look at the another important topic, that is of objectives resolution that was moved by Nehru ji in December 1946. इसमें हमारे संविधान के फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी को मेंशन किया गया है. कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला है कि दैट फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक. Point number 2 is that the ideal of social, political and economic democracy will be guaranteed to all people. The republic would grant fundamental rights and the state would safeguard the rights of the minorities and the backward classes. तो ये कुछ important values हैं. And if you see प्रेम्बल का चैप्टर अगर आपको याद है ठीक से, तो ये सारे वैल्यूज़ उसमें भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करके मेंशन किए गए. नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्टिंग लाइक अ टेम्पररी लेजिस्लेचर. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे फंक्शन कर रहा था जो आज के समय में एक लेजिस्लेचर करेगा, जैसे रैटिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ एट द टाइम, अडॉप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, एंड ऑल्सो इलेक्टिंग Dr. Rajendra Prasad ji as the first president of India. Now, there were many issues and many aspects that were to be taken care of. So, the Constituent Assembly decided to create major, minor, and subcommittees so that they can look after, the presidents can look after each of them individually. So, Union Powers Committee was presided by Nehru ji. Union Constitution Committee was again presided by Nehru ji. Provincial Committee was presided by Sardar Patel ji. The Drafting Committee was presided by B.R. Ambedkar ji. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Area was again presided by Sardar Patel ji. The Rule Procedure Committee was headed by Dr. Rajendra Prasad ji. States Committee for Negotiating with the States was presided by Nehru ji and the Steering Committee was presided by Dr. Rajendra Prasad ji. तो ये सारे नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आ सकते हैं, या तो दे कैन आस्क यू सिंपली अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट, तो प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम्स. एंड सब कमिटीज़ की जैसे मैंने बात की, तो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी JB कृपलानी जी के अंडर थी. माइनॉरिटी सब कमेटी वॉज हेडेड बाय HC मुखर्जी जी. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी वॉज प्रिसाइडेड बाय गोपीनाथ बारडोलोई जी. एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी वॉज हेडेड बाय AV ठक्कर जी. माइनर कमिटीज़ में कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, दैट वॉज हेडेड बाय GV मावलंकर जी. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी वॉज अगेन विद Dr. KM मुंशी जी. हाउस कमिटी वॉज विद पत्ताभी सीतारामैया जी. Ad hoc committee on the national flag was headed by Dr. Rajendra Prasad ji, and special committee to examine the draft constitution was headed by Laddi Krishnaswamy Iyer ji. Now let's understand the drafting committee quickly. See, it was considered to be one of the most important committees. जिसके जो chairman थे वो Dr. B.R. Ambedkar ji हैं, and he played a very important role in drafting the constitution and also in the passage of the constitution. सबका consensus लेना और एक final draft को pass करना was a very difficult task, and he did it meticulously. And the committee draft of the constitution was published in January 1948, and the second draft got published in October 1948 after incorporating the changes suggested by the members. Let's look at enactment of the constitution. These are the final stages in making. So final draft aata hai in 1948 after subsequent readings, multiple readings in fact. Some of the provisions of the constitution are adopted on November 26, 1949, but majority of the provisions came into force on 26th January 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं ना. वाई 26 January? बिकॉज ऑन 26 January 1930 पहली बार पूर्ण स्वराज की गूंज गूंजी थी हमारे देश में, एंड उसको कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं. Thank you so much for watching the video. If you watched the video up till here, do not forget to like, share, subscribe, and most importantly, go and download the session notes from the Telegram channel. I'll see you in the next video.